A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 business studies. As you know very well, in the last few videos, we discussed the first chapter of part A of business studies, that is nature and significance of management. In this chapter, first of all, we discussed a very important theoretical topic, that is what is management, what are the traditional and modern concept of management, as well as what are the traditional modern concept of management, what are the feature of management, what are the advantage of management, as well as the levels of management. And we can see that there are basically three levels of management: top level, middle level and supervisory level. Thereafter we discussed a very important topic, that is the nature of management, and we can see that they are basically three nature of management. If we are talking about the management as a science, and we can find that management is not a pure science, it is an inexact science or a social science. Whereas if we are talking about the management as an art, so we can find that all the feature of the art will be present in the feature of the management. That's why management will be taken as the pure art. And if we are talking about the management as a profession, so we find that management is not a pure profession, it is not a full profession. But after some year, we can find that management is a full-fledged profession, because of most of the feature of the profession are not present in the management, but it is likely to expect in future year, in after some time, all the feature of the profession will be present in the feature of management. So after discussing a lots of theoretical topics and very important topic of the nature and significance of the management, let's we discuss the next topic of this chapter, that is a function of management. If we are talking about the function of management, so we can say that the management function can be classified into the 5 categories, or in other words we can say that the management function can be applied by the any organization in the 5 steps. इट मीन्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करना है, तो बेसिकली मैनेजमेंट करने के लिए उसके बेसिकली 5 स्टेप्स डिसाइड किए गए हैं. यानी इफ़ यू वांट टू मैनेज द एनी थिंग्स, सो यू हैव अ 5 वेपन, इफ़ यू हैव अ 5 स्टेप्स बाय विच यू कैन ईजली मैनेज ऑल द थिंग्स एंड अचीव अ प्रीडिटरमाइंड गोल. सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing and controlling the activities of individual to achieve predetermined goal. यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं, इट मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू, एंड देयर आफ्टर वी आर ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़, ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, फिजिकल रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना. एंड देयर आफ्टर स्टाफिंग मीन्स रिक्रूट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम. यानी स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सही काम के लिए सही व्यक्ति को और सही टाइम पे उसको अपॉइंट करते हैं. एंड द डायरेक्टिंग मीन्स टू with the use of the different directing techniques like a communication, like a leadership, like a communication as well as supervision, we can direct the peoples. And डायरेक्टिंग फंक्शन के बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करता है, अपने सुपरवाइजर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करता है कि आपको काम कैसे करना है, और उसके लिए कई टेक्निक्स, कई एलिमेंट्स को यूज़ करता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करता है, मोटिवेशन फैक्टर्स को यूज़ करता है, सुपरवाइज करता है, लीडरशिप क्वालिटी को यूज़ करता है. एंड द कंट्रोलिंग मीन्स इफ़ ऑल द थिंग्स आर इन द प्री डिटरमाइंड वे, सो कोई कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं होती है. बट अगर कोई भी काम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, प्री डिटरमाइंड स्टेप्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है. कंट्रोलिंग मीन्स कह सकते हैं बेसिकली कि कंट्रोलिंग इज़ अ स्टेप्स, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग कंपनी कैन एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द ऑल द सोर्सेज ऑफ द बिजनेस, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. और ये सारा फंक्शन क्यों किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वी कैन अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल. यानी जो हमारा जो पहले से डिटरमाइंड गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए वी फॉलो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट
Firstly, we plan, thereafter we organize, thereafter we staff, thereafter we direct, and there at the last we control over the all the activities of individual to achieve the predetermined goal. यानी हम पूरी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टाफ करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, एट लास्ट हम कंट्रोलिंग करते हैं ताकि हम अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सकें. सो इन शॉर्ट, वन बाय वन वी डिस्कस्ड what is planning, what is organizing, what is staffing, what is directing, and what is controlling. So let me discuss it. The first steps of the management is the planning. So what is planning? Planning is a process of deciding in advance what is to be done, when, how and by whom. यानी प्लानिंग ऐसा प्रोसेस है जिसे हम एडवांस में डिसाइड करते हैं, यानी कि काम होने से पहले ये डिसाइड करते हैं, काम को परफॉर्म करने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, व्हेन कब करना है, हाउ मतलब कैसे करना है, बाय हूम मतलब कौन करेगा. इट मीन्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी काम को फर्स्टली डिसाइड करते हैं कि उस काम को जो हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा. इट मीन्स if you are talking about the planning, so it bridges the gaps between the present and future position. यानी कि with the help of planning हम present और future के बीच में जो gap है, जो बीच में time interval है, उनके बीच में एक bridge, जो उनके बीच में gap है उसके बीच में एक bridge का काम करते हैं. यानी कि हम present situation में ये decide करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, जिससे हम future का estimation करते हैं. और क्यों करते हैं? That the मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव. यानी मैनेजमेंट ये क्यों करता है? ताकि वो कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है. यानी अचीव करने का मतलब यहाँ सेंस इससे है कि प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, व्हेन कब करना है, हाउ कैसे करना है, बाय हू मतलब कौन करेगा. एंड बेसिकली इट ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोजिशन. और ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोजीशन के बीच का जो गैप है उसको क्या करता है, फिल करता है, ताकि प्रेजेंट के साथ साथ हम फ्यूचर की चीज़ों को पहले से क्या कर सकें, ईजिली रिनोवेट कर सकें, उनके बीच में जो गैप है उस गैप को फिल कर सकें ताकि हम अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. प्लानिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम. याद रखिएगा कि कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स को रोकता नहीं है बट कैन प्रिडिक्ट दैम. लेकिन हाँ, उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपको किसी एक्टिविटी को करने में क्या प्रॉब्लम आएंगे. एंड रिड्यूस देयर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, और हम उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को कम कर सकते हैं. जैसे बेसिकली फ्यूचर में वी एस्टिमेट डेट कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ उसमें मुझे लॉस हो सकता है, तो मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है, बट हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं व्हाट इज़ एक्चुअल प्रॉब्लम, और उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं हमारे बिजनेस पे, जो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पड़ेंगे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्लानिंग इज़ द प्रोसेस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन, हाउ एंड बाय whom. It bridges the gap between present and future position that the management wants to achieve. As well, very important line, it cannot prevent problem. यानी कि प्लानिंग की हेल्प से हम प्रॉब्लम को प्रिवेंट नहीं कर सकते बट कैन प्रिडिक्ट देम. हम उसको अनुमान लगा सकते हैं, उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कम किया जा सकता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू व्हाट इज़ प्लानिंग. The next step of the management is the organizing. What is organizing? Let's we discuss it. Simply way, you know very well, किसी काम को करने के लिए we have a three things. We have a three resources: man, money, material. Without man, that is a human resources, we cannot produce anything. हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते. We cannot. Why? Because ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी. दैट इज़ अ मैन. मनी इज़ अ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मशीनरी, सो इट इज़ अ फिजिकल रिसोर्सेज. सो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए वी हैव अ थ्री थिंग्स, वी हैव अ थ्री रिसोर्सेज, दैट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स, financial resource and physical resource. So with the help of organizing process, we organize all the three resources
फॉर अचीविंग अ प्रीडिटरमाइंड गोल, यानी जो हमने गोल अचीव करना है उस गोल को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, और इन रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग जो सेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन से होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं और जिनका गोल कॉमन होता है। इज दैट क्लियर? तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी क्रिएट अ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल। और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए वी टेक द सेकेंड स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वी कैन क्रिएट अ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, फिजिकल रिसोर्स चाहिए, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटी, यानी यहाँ हम ह्यूमन रिसोर्सेज को उनकी ड्यूटीज असाइन करते हैं। टास्क को ग्रुप करना, दैट इज अ ग्रुपिंग टास्क। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑफ स्पेसिफिक प्लान, यानी ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है बाय विच वी क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशन इन विच वी असाइन द ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान, यानी उस ह्यूमन रिसोर्स को अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने स्पेसिफिक प्लान को ख़त्म करने के लिए उसको जो अथॉरिटी की ज़रूरत है वो अथॉरिटी उसको प्रोवाइड की जाती है, और जो उसको रिसोर्सेज की डिमांड है, जो उसके रिसोर्सेज नीडेड हैं, उस रिसोर्सेज को हम लोग क्या करते हैं? उसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि विदाउट रिसोर्सेज वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। हम वी हैव अ प्रॉपर एंड एडिक्वेट रिसोर्सेज टू डू एनी काइंड ऑफ द वर्क। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जो ऑर्गेनाइजिंग स्टेप्स है ऑफ द मैनेजमेंट, वी कैन क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बेसिकली बताया, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, फर्स्ट थिंग। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या स्टेप लेना पड़ता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। तो फाइनेंशियल रिसोर्स इज द मनी, फिजिकल रिसोर्स इज द एसेट्स, दैट इज द मशीनरी, एंड ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए? लोगों को ड्यूटीज़ अलॉट करना, उनके लिए टास्क अलॉट करना, उनके लिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करना, उनसे उनको उनके काम को कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर सकें। कौन? जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, दे विल कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम विथ लीस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके लिए उनको प्रॉपर रिसोर्सेज अलॉट करना, क्योंकि अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। एंड you can see that with the help of the organization process we easily create the organizational structure। हम easily एक organizational structure create कर सकते हैं। Okay, so I hope it is clear for you what is organizing। The third step of management is the staffing। You know very well, हमने क्या किया? resources available कराया और ये decide किया कि हमारे business का organizational structure क्या होगा, और उससे पहले हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो बेसिकली स्टाफिंग प्रोसेस का बेसिकली मतलब ये होता है टू रिक्रूट द राइट पर्सन एट राइट प्लेस। सिंपल वे, इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट स्टाफिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी स्टाफ द पर्सन। स्टाफ का मतलब ये नहीं होता है रिक्रूट अपॉइंट करना, जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको राइट जॉब देना एट राइट टाइम। कौन सा बंदा कौन सा काम एक सही टाइम पे कंप्लीट कर सकता है, इट इज़ अ स्टाफिंग। दैट्स वाई स्टाफिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फिलिंग पोस्ट पोजीशन होते हैं उनको फिल करते हैं विथ एडुकेट एंड क्वालिफाइड पर्सनल, यानी जो उस पोस्ट के लिए एडुकेट होता है, क्वालिफाइड होता है, उनको उनके रिक्वायर्ड पोस्ट अलॉट किए जाते हैं। इट इंश्योर दैट राइट पीपल विथ राइट क्वालिफिकेशन आर एम्प्लॉयड एट अ राइट प्लेस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग इंश्योर दैट द राइट पीपल विथ राइट क्वालिफिकेशन एट अ राइट प्लेस, यानी सही बंदा
उसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, उसके अकॉर्डिंग उसे एक राइट जॉब मिलनी चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन. जैसे मैंने आपको बोला कि ह्यूमन रिसोर्स को के लिए, उनको प्रॉपर स्टाफ करने के लिए, उनको प्रॉपर सही जॉब प्रोवाइड करने के लिए हम स्टाफिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं. As it involve activity like as recruitment, selection, placement and training. It is very important part of you because all the terms are included in your syllabus. आपको रिक्रूटमेंट भी पढ़ना है, सिलेक्शन भी पढ़ना है, प्लेसमेंट भी पढ़ना है, ट्रेनिंग पढ़ना है. वाई? बिकॉज स्टाफिंग में ये सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं. स्टाफिंग में हम रिक्रूटमेंट करते हैं. रिक्रूटमेंट मतलब मोर टू मोर पीपल इंड्यूस टू अप्लाई फॉर अ जॉब. यानी हम कोई अगर जॉब हमारे पास है, अगर हम किसी को कोई जॉब दे रहे हैं तो फर्स्टली वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंड्यूस द पीपल, इंड्यूस टू द पब्लिक फॉर अप्लाई मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स. तो ताकि हमारे पास मोर ऑप्शन हो. तो रिक्रूटमेंट के बेसिस में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैक्सिमम अप्लीकेशन डिमांड करते हैं और उन सब का एनालाइज करने के बाद एक सर्टिफाइड, एक राइट क्वालिफिकेशन वाले बंदे को सेलेक्ट करते हैं. प्लेसमेंट मतलब उनको जॉब देना. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी बात होती है. स्टाफिंग में ट्रेनिंग देना. ट्रेनिंग आर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. एंड डेवलपमेंट, when we are talking about the development, so we can say that perfection there, you know very well, practice makes a man perfect. तो अगर कोई व्यक्ति, कोई भी बंदा हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, उसे हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वी एक्सपेक्ट दैट कि वो डेवलप करे, यानी वो हर काम में परफेक्ट होता रहे. सो स्टाफिंग का एम जो होता है, फर्स्टली वो एम ये होता है टू रिक्रूट द राइट पर्सन विथ राइट क्वालिफिकेशन एट अ राइट प्लेस, एज वेल एज to conduct a training and development program for the development of the employees of the organization. क्योंकि entirely वो हमारे बिजनेस को ही क्या करेगा, बेनिफिट देगा. ओके. द फोर्थ स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ अ डायरेक्टिंग. अभी तक जो हम काम कर रहे थे उसमें ऑपरेटिंग लेवल का काम नहीं हो रहा था. उसमें अभी तक हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे थे और रिसोर्सेज को सही जगह दे रहे थे. इट मीन्स किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी हैव अ प्रॉपर लेआउट. अगर वो लेआउट सही रहता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करते हैं. तो डायरेक्टिंग इज़ अ स्टेप्स ऑफ द मैनेजमेंट जहाँ पर हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं. यानी डायरेक्टिंग रेफर्स टू द स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट इन विच वी एग्जीक्यूट द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिसोर्स एंड स्टाफिंग. यानी कि जो तीनों स्टेप्स में अगर हमने जो अभी तक सोचा है, जो हमने प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेट किए, ये सब चीज़ें डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, ग्राउंड रियलिटी में अप्लाई करते हैं. सो विद दी व्हाट इज़ डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग फंक्शन इज रिलेटेड विद द लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ प्लान टारगेट. अब डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है बेसिकली जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो वर्कर्स हैं उनको लीड करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और पीपल्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने प्लान टारगेट को ईजिली अचीव कर सकें. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इसे हम लोग एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं. इट इज़ कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट. अगर हम जनरली बात करें तो डायरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने जो भी हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग किया है, ऑर्गेनाइजिंग किया है, स्टाफिंग किया है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं. और इसमें एग्जीक्यूट का मतलब होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट. यानी टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान और पॉलिसी बनाई है उसको बेसिकली हम डायरेक्टिंग फंक्शन में ही क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके. सो व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन in which we direct the person to achieve a predetermined goal. In the directing function, we lead this person, influencing the person, guiding the person, supervising the person, motivating the person for attaining a प्लान टारगेट. यानी जो गोल हमने डिसाइड किया उसको अचीव करने के लिए हम प्रॉपरली उनको लीड करते हैं, यानी उनको मॉनिटर करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं ताकि वो अपने प्लान टारगेट को ईजिली अचीव कर सकें. दैट्स वाई डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन इन विच वी execute the layout which are already decided in the
planning, organizing and staffing steps of the management. So I hope it is clear for you what is directing. Now we will move to the last function of the management, that is controlling. So what is controlling? In short way we can say that you know very well, हमने प्लान किया फर्स्टली what to do, how to do, when to do, by whom to do, why to do, ये सब चीज़ें हमने डिसाइड की इन द प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज़ अ प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने रिसोर्सेज एलोकेट किए, रिसोर्सेज अरेंज किए, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि लोगों की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। देयर आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टाफिंग, रिक्रूट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग की बात की, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए। सो जब हम प्लान करते हैं और प्लान को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था वो ऑब्जेक्टिव विद इन अ टाइम, विद इन अ गिवन रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाए। लिसन केयरफुली, जब हम कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, एंड जब हम उसके लिए एक्चुअलिटी ग्राउंड रियलिटी में वर्क करते हैं तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट resources and sufficient time to complete the task on time as well as with the least optimum utilization of the resources. Basically जब हम डायरेक्टिंग फंक्शन करते हैं तो एक्चुअल प्रॉब्लम वहाँ दिखती है कि अभी हम जो बात कर रहे थे वो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों पे बात करते हैं, बट एक्चुअल रियलिटी हमें डायरेक्टिंग में पता चलती है कि किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने से, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से हमें कितना पॉजिटिव एंड कितना नेगेटिव रिएक्ट देखने को मिल रहा है। सो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके बेसिक्स से हम अपने जो टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका मेज़रमेंट करते हैं। बेसिकली हम ये मेज़र करते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को कितना कंप्लीट किया है और कितना कंप्लीट नहीं किया। इफ़ वी कंप्लीट ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट सो इट मीन्स वी सक्सीड। अगर वी कैन नॉट अचीव ऑल द टारगेट्स ऑफ द गोल, सो इट मीन्स हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। बेसिकली कंट्रोलिंग इज अप्लाइड वेयर वी कुड नॉट अचीव आवर प्री डिटरमाइंड टारगेट, यानी जब हम अपने प्री डिटरमाइंड टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो उस सिचुएशन में वी इस्टेब्लिश अ कंट्रोल ओवर द ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यानी जब हम अपना ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपना गोल नहीं अचीव कर पाते, जैसे मैंने अपना ऑब्जेक्टिव रखा कि वी प्रोड्यूस इतना यूनिट इतने टाइम। सो बेसिकली कंट्रोलिंग का एम ये होता है कि हम जो भी अपना ऑब्जेक्टिव रखे हैं वो कंप्लीट हो जाए। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है देन वी आर मूविंग टू द कंट्रोलिंग। ओके, सो कंट्रोलिंग इज अप्लाइड वेयर व्हेन वी कुड नॉट कंप्लीट आवर ऑब्जेक्टिव विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग, लेट्स वी डिस्कस इट। कंट्रोलिंग is a function ensure that the activities are carried out in the according with the target sets, यानी जो हमने एक्टिविटी की है वो टारगेट के अकॉर्डिंग की है, ये इंश्योर करता है कंट्रोलिंग। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, यानी कि हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड द स्टैंडर्ड कि हमें जो काम करना था उसके स्टैंडर्ड्स क्या थे, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। मेजरिंग परफॉर्मेंस, हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं कि हमने स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कितना काम किया, एंड देयर आफ्टर वी कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, यानी हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं कि हमने जो अपना स्टैंडर्ड तय किया था, जैसे सपोज वी डिसाइड आवर स्टैंडर्ड इज 1000 यूनिट पर डे, बट एक्चुअलिटी में वी प्रोड्यूस ओनली 900 यूनिट्स पर डे। इट मीन्स हम अपने स्टैंडर्ड से पीछे चल रहे हैं। कितने पीछे चल रहे हैं, दैट इज़ 100 यूनिट्स। सो यहाँ पर कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, एंड देयर आफ्टर वी टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन। हम उसके लिए करेक्टिव एक्शन फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमने अपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड को कंप्लीट नहीं किया है, सो विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस वी टेक अ करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द डेविएशंस। डेविएशन मीन्स द एक्चुअल स्टैंडर्ड माइनस द एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड इज 1000 यूनिट पर डे एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज 900 यूनिट्स पर डे। सो दैट्स वाई अभी भी हम अपने टारगेट से 100 यूनिट्स पीछे चल रहे हैं। Okay, so what is controlling? Controlling is a process which ensure that the activities are carried out in the accordance with the target set. The task of controlling involves establishing a standard, measuring performance, comparing with the standard and comparing actual performance with the standard, analyzing deviations,
एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा क्यों हो रहा है कि हम 100 यूनिट्स पर डे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है सॉरी, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास जो फिजिकल रिसोर्स हो यानी इट मीन्स मशीनरी अवेलेबल हो वो उतनी कम्पीट ना हो। सो दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं बेसिकली, जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी MB मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सो यू कैन सी दैट we discussed a very important topic of the first chapter, that is the nature and significance of management, that is the planning, organizing, staffing, directing and control. Okay.